कभी ईंट बन जाए। भारत में जहाँ औरत ममता की खान है, वहीं विपदा आने पर औरत माँ चंडी का अवतार है। Since time immemorial, women have been worshipped in India, but in today's scenario, women have become vulnerable to attacks, and their safety has become prime concern for our society. A very warm good morning to one and all present here. Today, we are here to inaugurate a 15-day self-defense training program, which is going to be held in the Maharaja Agresam Institute of Management Studies in collaboration with the Delhi Police. On behalf of the Maharaja Agresam Group, my friend Aradhana Pandey and I, Elizabeth Joseph, welcome our honorable chief guest for today, Ms. Santosh Yadav, our chairman, Dr. Nand Kishore Garg, our director, Sir, Dr. C.S. Sharma, and our respected faculty members. We, as girls and students, are grateful to this institution for providing us with such a motivating opportunity for the empowerment of women. हर पल गूंथी जाए, कभी सुराही में ढले, कभी ईंट बन जाए। भारत में जहाँ औरत ममता की खान है, वहीं विपदा आने पर औरत माँ चंडी का अवतार है। Self defense, especially for women, is of utmost importance considering the kind of world we live in today. In a country like India, usually women are considered as easy targets. भारत में जहाँ औरत ममता की खान है, वहीं विपदा आने पर औरत माँ चंडी का अवतार है। Since time immemorial, women have been worshipped in India, but in today's scenario, women have become vulnerable to attacks, and their safety has become prime concern for our society. A very warm good morning to one and all present over here. Today, we all are here to inaugurate the 15-day self-defense training program, which is going to be held in the Maharaja Agresam Institute of Management Studies in collaboration with the Delhi Police. On behalf of the Maharaja Agresam Group, my friend Aradhana Pandey and I, Elizabeth Joseph, welcome our honorable chief guest for today, Ms. Santosh Yadav, our chairman, Dr. Nand Kishore Garg, our director, Sir, Dr. C.S. Sharma, and our respected faculty members. We, as girls and students, are grateful to this institution for providing us with such a motivating opportunity for the empowerment of women. Self-defense, especially for women, is of utmost importance considering the kind of world we live in today. In a country like India, usually women are considered as easy targets. Cases of gender violence are on the rise. A total of 3,09,546 cases of crime against women were reported in the country during the year 2013, in comparison to the 2,44,217 cases in the year 2012, thus showing an increase of 26.7%. Self-defense for women has become a necessity more than ever. Providing self-defense training increases self-confidence in girls, and this is one of the noble initiatives taken up by the Delhi Police. Delhi Police have imparted self-defense training to young girls in several parts of the national capital under its Say No to Fear program. During the 15-day training program, participants are taught self-defense techniques including knife attack, punches, tiles breaking, coconut breaking, and also giving demo of various other techniques. Another initiative taken up by Delhi Police is the Himmat mobile application. Launched for safeguarding the interest of women, it allows them to send a distress call to the police control room and their relatives in case of any mishappening. Further, Delhi Police and the Delhi government have also distributed pepper spray cans and have awarded the girls who have exceptionally complete
completed their self-defense training program. Now we take pleasure to introduce to you all the dignitaries for today. First of all, we have with us our chief guest for today, Ms. Santosh Yadav. Ms. Santosh Yadav is an Indian mountaineer. She is the first woman in the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb the Mount Everest from Kangshak phase. She first climbed the peak in May 1992 and then repeated the feat in May 1993. Her dreams of being a mountaineer began while she was a student in the Maharani College of Jaipur, where she was able to see mountaineers from the window frames of her room. In the year 2000, Ms. Santosh Yadav was honored with the Padma Shri Award. She is a perfect example of a woman who has traversed from a small town in Haryana to the peaks of Mount Everest. May I request our director, sir, to please present the bouquet and welcome Ms. Santosh Yadav for the event today. A round of applause for our chief guest, Ms. Santosh Yadav. We would also like to welcome Dr. Pandey, who has joined us on this occasion of self-defense training. May I request our director, sir, to please welcome them with a floral bouquet. We would also like to welcome Mrs. Anuradha, who is the in charge of the program, who has joined us on the occasion of self-defense training. May I request our director, sir, to please welcome her with a floral bouquet. We would also like to welcome Ms. Shivani, who has joined us on this occasion of self-defense training. May I request Ms. Sangeeta ma'am to please welcome her with a floral bouquet. Now, the students of MBA will be presenting a skit on the need of women empowerment and self-defense. आओ आओ देखो 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 वी लगाओ वी लगाओ दुर्गा माँ को शक्ति देने और सरस्वती माँ को विद्या देने फिर क्यों उसी देश में लड़कियों की हत्या करने जाती है? क्यों लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव किया जाता है? इस भेदभाव की शुरुआत आखिर उसी वक्त से है। भेदभाव की शुरुआत होती है हमारे घरों से। आइए ऐसे ही इसका नजारा हम दिखाते हैं। माँ माँ मुझे बढ़िया जरूरत है माँ मुझे भी करना है। तुझे तुझे क्यों करना है? माँ मुझे कहाँ चाहिए माँ मुझे भी एक्टिवा चाहिए। तुझे तुझे एक्टिवा क्यों चाहिए? लड़के और लड़की की मांगे एक जैसी होते हुए भी मांगे पूरी किसकी होती है? सिर्फ बेटों की, लड़कियों की नहीं। ऐसा क्यों? जब हमारे घर में हमारे बीच इतना भेदभाव होगा, जब ये लड़कियां बाहर जाएंगी तो इनकी यात्रा करना पड़ता है। आइए आपको उसकी भी एक झलक दिखा देते हैं। बात तो सुनो। नाम क्या है आपका? हाँ मेरा हाथ। अरे तो ये नाम पूछ रहे हो, इतना गुस्सा बताओ। प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो। कोई नहीं है यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए। ये लड़के मुझे परेशान कर रहा है। भाई भाभी मान नहीं क्या भाभी किसको बोल रहे हो? अरे तुझे ही तो बोल रहे हैं भाभी तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ मैं तेरे को है हर किसी को ऐसे रास्ते पे छेड़ते फिरते हो। ज़्यादा बोल रही है क्या भाई काम कर दे इसका हाल
क्यों चुप हो भैया? क्या सोच रहे हो? क्या सो रहे हो? आज हम प्रण लेते हैं कि हम नारियों के प्रति इस समाज की विचारधारा को बदलेंगे। अत्याचार ना तो हम सहेंगे, ना ही किसी को सहने देंगे। आत्मनिर्भर होकर इस देश को समृद्ध बनाएंगे। Good morning, everyone. Welcome everybody here by giving them a big round of applause. Show your power. Please show your power. My request to you is show your power. Good one. I think, ma'am, the real welcome is this. We have difficulty with the audio system. We did not know that voice will have so much echo. Nonetheless, I wish you all the best. We understand that in our country, women do not enjoy much status. There is no personal space available to you. I understand. And over and above that, there are safety and security issues. I hope the program and training like this will go a long way to develop you as strong women. I wish you be empowered, you be strong, be independent, while you are the light to the home you enter. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I request our honorable chief guest to come and grace the occasion with a few words. मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। मैं एक पुलिस अधिकारी भी रही हूँ। And that too, there all men were there. There was no women. Single Indian Border Police and LGD card. तो कभी-कभी मेरे पास मुझे 400-500 से लेकर के 4000 आदमियों के साथ में रहना पड़ता है और कभी-कभी मैं 4000 लोगों की बॉस भी होती थी। मैंने कभी भी उनको ये एहसास नहीं कराया कि मैं आपकी बॉस हूँ। मेरे जो जूनियर होते थे जिसमें हायरार्की में वो 50 साल का होता था और मैं मात्र 22 साल की थी। मैं बहुत कम उम्र में पुलिस अधिकारी बन गई थी, मात्र 22 साल की। लेकिन मैं उस 22 साल की कम उम्र में और या कॉलेज के दौरान मैंने कैसे अपने आप को संभाल के रखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है सबसे पहले तो शायद आपको इस बात के लिए क्वेश्चन मन में उठेगा कि ड्रेस जो कोड है वो मैटर नहीं करता। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा। मैं इसका बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी। मैं जीन्स पहनती हूँ। मैं भी क्योंकि माउंटेनियर हूँ,
जो करता है अक्सर किसी कॉलेज जाने वाली लड़की के साथ में करता है, तो वो लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। वो क्या है? नॉर्मल लोग नहीं हैं, वो बीमार लोग हैं। उस बीमार लोग को जन्म कौन दे रहा है? एक महिला। उसको जन्म कौन दे रहा है? एक महिला। एक दिव्य पुरुष को भी जन्म कौन दे रहा है? एक महिला। तो मैं वापस एक बात पे आना चाहती हूँ, अनुभव बाद में शेयर करूँगी। जो मुझे उस अनुभव से जो मुझे समझ में आया एक बार, जब मेरे बच्चे भूखे हो रहे थे तो मैंने 10% गर्भ संस्कार किया। गर्भ संस्कार जब बच्चा पेट में होता है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है इस बात को। और साइंस तो जब मैं प्रूव कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे आज मेरे बच्चे वो करते हैं जो मैं जब मेरे गर्भ में थे तो जैसा मैं सोचती थी, जैसा मैं करती थी, आज मेरे बच्चे को निभाए नहीं। तो यानी कि कहने का मतलब है, जब हम गर्भ में बच्चा आ जाए तब की तैयारी नहीं, उस शैतान को हमें कब खत्म करना होगा? गर्भ में आने से पहले ही। वो कौन करेगा? हम सब महिलाएं और बाप मिलकर के। जब हम एक बीज लगाने जाते हैं तो यदि हमने आम का बीज उसकी लगाई है तो आम होगा ना, कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। इसी वजह से यदि हमने बबूल लगाया तो बबूल होगा। आज मैं ये बात बताना चाहूँगी कि गर्भ में आने से पहले हमारी शादी हुई और हमारे शादी के बाद यदि हमें बच्चा प्लान करना है तो उसके लिए अगर हम अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, केवल हमारा स्वयं का भविष्य नहीं, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चों में है। हमारे खुद के स्वयं के बच्चे ठीक नहीं है तो हम दुनिया के बच्चों को क्या करने जाएंगे? आज मैं बताना चाहूँगी, हमें इस डिफेंस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है मेरे बच्चे तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत अच्छी आत्माएं हैं। वो एक पवित्र को खोज रही है। वो क्या कर रही है? एक पवित्र को खोज रही है। वो हमें पता है, तो हमें डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारिश हुई, बारिश में भीगना चाहते हैं या नहीं चाहते? या आपके ऊपर आग लग रही है, आप आग में से जाना चाहते हैं या बचना चाहते हैं? या आपके ऊपर। मैं मानती हूँ कि हमें ऐसे जो बीमार लोग हैं इनको सजा देने से कोई फायदा नहीं है। लोग फिर भी नहीं सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। ये बात मैं कहना चाहूँगी, नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो बीज टूट गया है उसका क्या? और ये बात मैंने खुद महसूस किया है जब मैं पुलिस में थी। इसकी हिम्मत नहीं होती थी हमारी तरफ देखने, जो कि मैं बाल प्रॉपर टाई करती। मुझे पता है मुझे उससे कितना डिस्टेंस रखती थी कि उनकी मेरी तरफ ऐसे आँख उठा। नहीं तो एक इतनी कम उम्र की लड़की और इतने लोगों के बीच में कैसे एक और दारू पीने वाली, आपको पता है ना आर्मी में पुलिस में दारू सरकारी होती है। आपको पता है मैंने लोगों की दारू बंद कराई। कैसे बंद कराई पता है? बड़े प्यार से। कितने लोगों ने दारू बंद कर दिया। यू हैव टू रीजन आउट, आपको रीजन आउट करना पड़ेगा। अगर आज मैं क्षमा चाहूँगी, आपको पता है हम जो खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, वो हमारा डिटरमाइन करता है हमारा व्यवहार। लोगों ने, मैं मामले में लोगों ने कहा ये लड़की पतली दुबली नाजुक सी ये क्लाइंब करेगी, मुझे डॉक्टर ने फेल किया हुआ है। डॉक्टर्स ने मुझे फेल किया हुआ है, इसके तो लंग्स ही नहीं है, अंडर वेट है, उड़ जाएगी। कहा कि एक लड़की उसको मत लेके जाना। आपको पता है हमारा भोजन वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, और इतना सा भोजन लेते हैं, ये ताकत कहाँ से है? तो हमारे अंदर एक बहुत सिंपल सा मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं
एक हमारे अंदर बहुत जो इम्पोर्टेंट जो था वो द्वेष, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बात कर रही हूँ, मैं किताबी नहीं बात कर रही हूँ। हमारा द्वेष होना नहीं, किसी के प्रति हम द्वेष नहीं, किसी के प्रति द्वेष जलन की भावना नहीं, वो मेरी एनर्जी बन गई। और जब द्वेष रहित होते हैं, हमारा जब व्यवहार बहुत शांत और अच्छा स्वभाव होता है, सौम्यता से ही हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और सौम्यता से क्या होता था कि हमारी ऑक्सीजन लेवल मेरा बढ़ जाता है और किसी भी सिचुएशन में सही डिसीजन लेने के लिए आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक ऑक्सीजन, क्योंकि आपका ब्रेन किसी से काम और ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़िया है तो आपके अंदर धैर्य है। तो ये सब बातें जैसे मैंने बता रही थी कि आग लगी हुई है तो आग में से जाएंगे या साइड में से बच के जाएंगे, साइड से बचेंगे ना। बरसात हो रही है, दिखना है, ठीक है देखिए। यदि आपने कहा कि नहीं मुझे बचना है बरसात से, आगे क्लास अगर कभी पीऊँगी तो मुझे ठंड लग जाएगी, अगर सर्दियों में है तो मुझे बचना है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों, अगर हम पागल लोग घूम रहे हैं, बीमार लोग घूम रहे हैं, यदि उनको हम उनकी आइज अट्रैक्ट करते हुए जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं इतने साल वहाँ रोकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे साथ। एक बात और मैं बोली, अब मैं कार में बैठी बात कर रही थी, क्लास में बदमाशी कोई और करता था, डांट किसी और को पड़ जाती थी। होता है ना ऐसा, घर में भी ऐसा होता है, भाई बदमाशी करे डांट करनी पड़ गई। लेकिन कभी कभी मैं बदमाशी करता था, मेरे भाई को डांट पड़ती थी। मैं 5 साल की एज में, ठीक है, सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसी होती है। मेरे भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छे परिवार से होते थे, लेकिन मैंने उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं किया। सिचुएशन को जब मैं फेमस होने लगी तो लोग मेरा इंटरव्यू करने आ गए और इंटरव्यू करते समय कहा आपका क्या है, तो लोग अरे कैसे नहीं, आपके भाई तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गए, आप हिंदी मीडियम स्कूल में गए। प्यार मुझे बहुत मिला मेरे माँ बाप से, वो एक सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे पिता आर्मी में थे और वो आर्मी में मेरे भाई लोगों को ले जा सकते थे, मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ सभी जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, हम लड़कियों के लिए जमाना, हम तो खुद सुरक्षा करेंगे समाज की, ऐसा मैं सोचती हूँ। और वह सुरक्षा जो मैंने कई चीज़ें बताई और सबसे ज़्यादा गर्व से देकर के सुरक्षा कर सकते। एक माँ यदि ये कह दे बीज बोने से पहले प्रार्थना करें कि हम एक स्वच्छ और बढ़िया समाज लाना है, तो वैसी उसकी भावना जैसी, अगर वह डरती रहेगी और बच्चे को बेघर में बच्चा है तो बच्चा डरपोक ही पैदा होगा, आपको पता है। और एक बात और बताना चाहूँगी, न केवल यदि हम महिलाएं ड्रिंक करती और स्मोक करती हैं तो आने वाले संतान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बल्कि पिता भी अगर करता है तो नॉर्मल नहीं होता है बच्चा। और यदि कहते हैं लोग कि हमने ड्रिंक किया फिर भी हमारा बच्चा नॉर्मल हुआ, तो वो आप सोच सकते हैं कितना जीनियस हो सकता है वो बच्चा। तो इन सब चीज़ों पे हमने कहा हमारे साथ जेंडर, हमें पॉजिटिव सोच रखनी है। मैं अपने भाइयों को अंग्रेजी स्कूल में जाते हुए पता क्या देखती हूँ, मुझे खुशी होती है, मैं इंस्पायर होती थी कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, क्योंकि मैं गाँव से आई थी, मैं गाँव में रह गई थी अपनी दादी के पास। मेरी 14 वर्ष में शादी हुई, मेरी माँ ने कहा 16 वर्ष में पूरा का पूरा सारे लोग आपको शादी कर देंगे, लेकिन मैंने बड़े तरीके से अपने आप को वहाँ से बचाया और बच्चे चुनी। कभी भी मौका मिले तो यूट्यूब पे एक फिल्म पड़ा हुआ है हमारा, वो जरूर देखिएगा, संतोष यादव माउंटेनियर टाइप का, संतोष यादव की केवल उसमें कुछ बताया हुआ है। तो लेकिन मैंने फिर भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं होने दिया और मैंने कहा नहीं, मेरे पिता माता बहुत प्यार करते हैं, यदि मैं उसमें उलझ जाती, अपने माँ बाप से झगड़ती कि आप लोगों ने मेरे बेटा को, आपने अपने बेटा को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाया और मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाया, तो पता क्या होता, मेरा विकास वहीं रुक जाता, मेरा विकास वहीं रुक जाता। इसलिए सिचुएशन है हमारे समाज में और तो सारा बदलने वाला होता है, लेकिन इसको कौन दूर करेगा? हम दूर करेंगे, हम स्वयं दूर करेंगे। जब हमारे पेट में घर में बच्चा हमारे से नहीं, और जब घर में होता है तब मेरा बच्चा, मैं जब मेरी बेटी गर्भ में थी तो मैं सूर्य को अर्घ दे रही थी,
मेरा 1.5 साल का बच्चा खड़ा होकर गायत्री मंत्र बोल रहा है कि मैंने तो इसको सिखाया नहीं, कहाँ से बोल रहा है। तब मुझे याद आया कि मैं जब घर में था तो मैं गायत्री मंत्र सुबह शाम दोपहर चैन करती थी और सुनती थी। आज वह संस्कृत का इतनी अच्छी अंग्रेजी होते हुए उसका कहता वहाँ मुझे संस्कृत का टीचर चाहिए। क्यों चाहिए? 5 साल का था, क्यों चाहिए तुमको? आपको पता क्या? क्योंकि जब मेरे घर में था 5वें महीने में मैं वेद पढ़ना चाहती थी। मुझे वेद समझ में नहीं आते थे क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती थी। मैं रोजाना सोचती थी कि मैं संस्कृत सुनना जानना चाहती थी, वेद पढ़ने का मन होता था। लोगों को होता है ना, जब बच्चा पेट में तो ये खाने का मन करता है, वो खाने का मन करता है। मेरा कुछ और मन करता था। घर में जब बच्चा आता है करवाता है तो मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल किताब बिल्कुल नहीं हट जाती थी। मुझे कुछ होने लगता था, एकदम डिस्टर्ब लगता था। मुझे वाइट कपड़े पहनने का मन करता था, कलर से मुझे फोबिया हो गया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, महात्मा स्वामी पर वो हमें करवा रहे हैं। जानते हैं 100% सही बात है। उस बच्चे ने जब कहा मैं सोलर सिस्टम को जानना चाहता हूँ, वेद पढ़ना चाहता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने नहीं सिखाया उसको। आपको पता है हनुमान चालीसा वेद के बारे में इतना अच्छा से कंठस्थ प्रसंग करके मेरे घर में पंडित जी पूजा कराने आते साइड में आते क्या हो गया आपका बेटा वेद 11 बजे पहले कौन से प्रश्न करने वाले। तो ये बच्चों में अंतिम क्या हालत में मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को अगर हमारा भविष्य, देश का भविष्य, अभी हमारे जो स्पीक कर रहे थे वो कह रहे थे कि देश का भविष्य हमें उज्जवल बनाना है। अगर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है तो मैं एक खुशबू आ रही थी, परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। आपको पता है अगर हम परफ्यूम लगाएंगे हम अपनी खुद की याददाश्त कमजोर कर देंगे, हम खुद की सोचने की शक्ति कम कर देंगे, हम पहचानने की शक्ति कम कर देंगे अपनी खुद की। तो दूर बात ओजोन लेयर आपको पता है बहुत डिस्टर्ब होगी हमारे परफ्यूम, जो भी केमिकल चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अगर देश का स्वच्छ होना और देश को सुंदर बनाना है तो अनावश्यक चीज़ों को अपनी जिंदगी से निकाल देना, सिर्फ आवश्यक चीज़ें। अगर हम आवश्यक चीज़ों को इस्तेमाल करके तो हमारा खान-पान, हमारा रहन-सहन, हमारा सोचने का तरीका सारा बैलेंस हो जाएगा। किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी आपको छेड़ने की। पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मैं MA में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी हमें 38 गर्ल्स को हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तो हमें यूनिवर्सिटी हॉस्टल दे दिया गया। अब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में से हम PG गर्ल्स जाते थे पढ़ने के लिए, तो लड़के लोग जो है काफ़ी सीटियाँ मारते थे, हमें खूब सीटी मारते थे। लेकिन हम सीटी का जवाब फिर सीटी मारते थे, फिर नीचे कर देते थे। माओ के फोन आ गए कि हमारा बच्चा आपके लिए परेशान है हॉस्टल में। हम कहते थे मैं एक गाँव से हूँ, मैं ये काम से हूँ, मैं तो पढ़ने के लिए, मेरी शादी तो 14 वर्ष में हो रही थी, 16 वर्ष में हो रही थी, सारे लोग मेरे पीछे, मैं तो पढ़ने के लिए मैं बाहर आई, मुझे क्षमा करें। आपको पता है मैं इतनी सौम्यता से उसे बुलाई भी नहीं जवाब देती। ये हमें नहीं, मैं आप लोगों से सचमुच हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस भारतवर्ष का ही नहीं पूरे विश्व का भविष्य जो है हम महिलाओं के हाथ में। हम ही सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं, हम पुरुष को भी सुरक्षित कर सकते हैं। और उसको सुरक्षित करने के लिए हमारे पास एक किसान जब खेती बोता है 6 महीने की खेती के लिए, आप लोगों को कुछ अगर वो लड़कियाँ गाँव से हैं या किसका नंबर गाँव से होगा तो जरूर बताएगी कि 6 महीने की खेती के लिए वह जी जान लगा देता है, कितनी मेहनत करता है खेती को, वो बढ़िया बहा लगाता है, उसका क्या क्या नहीं करता है। उसके बाद खेती को जब बीज रोपता है तो मुहूर्त निकालता है कि मुझे किस दिन इसका बीज रोपण करना है, और मुहूर्त निकालने के बाद बीज रोपण के बाद उसको सेलिब्रेशन करता है। हम इंसान की 100 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष की खेती की हम कोई प्लानिंग करते हैं नहीं करते, कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। और
अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो रही है, चाहे प्राकृतिक समस्याएं हैं, चाहे सांस्कृतिक समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि हम भावहीन हो गए हैं, हमारे पास भाव है ही नहीं। भावनात्मक रूप से हमें समृद्ध होना पड़ेगा, बलवान होना पड़ेगा, देश अपने आप ही समृद्ध होना पड़ेगा। यदि हम आपस में डिफेंस की बातें सोचते, कितना समय बर्बाद हुआ। यदि हमने घर में जो बच्चा था, मैं वो आज की जरूरत है, मैं मानती हूँ आज की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरत है हमें अपने आप को सुरक्षित करने की, कि हमें अच्छा व्यवहार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर्म की बात बताई, चाहे हम अभी आज मुझे जो कुछ मिला है, न केवल एक बस कहानी सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूँ। बातें तो बहुत करनी थी, आपको पसीना आ रहा है ना, तो ये ऐसे करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब पसीना पोछेगी तो उससे स्किन भी खराब होता है और गर्मी लगेगी, तो पसीना कभी नहीं खींचना चाहिए, हमेशा उसको आने देना चाहिए। चलिए मैं लास्ट में कर्म और प्रारब्ध की बात जो है, प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि हमने जो जन्म मिला है, हमने जो भी काम किया, एक्शन हैज अ रिएक्शन, यानी कि जो भी हमने सोचा, सोच का भी एक वो होता है, हमने किसी के बारे में बुरा सोचा या अच्छा सोचा, उसका सबसे पहले इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, एक कहानी है, ये रियल कहानी है। एक चौकीदार थे, चौकीदारी कर रहे थे अपने कॉलोनी में, तो कुछ चोर घुसे और चोर घुस करके उस मालिक को, जब चोरी करने लगे तो मालिक ने उसको अपोज किया, तो वो हाथा भाई में मर गया। चौकीदारी करते हुए आ रहा था, उसने हल्ला सुना, तो घर में गया, क्या हो रहा है, तब तक चोर भाग गए और वह वहीं पे देखता रह गया। और इतने में पास पड़ोस के लोग भी उठ के आ गए, उन्होंने देखा पहले चौकीदार को पकड़ लिया, चौकीदार ने शायद किया है, तो चौकीदार ने पुलिस ने बुला लिया पुलिस को, तो चौकीदार के लाख मना करने के बावजूद लोगों ने माना नहीं, उन्होंने कहा इसी ने किया है ये काम, उसको आजीवन कारावास हो गया। जब आजीवन कारावास हुआ तो वो हर अपनी तारीख पे कहता था, जज साहब मैंने ये काम किया, वो गिड़गिड़ाया, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने किसी ने नहीं सुना। तो पता चला मृत्युदंड की उसकी बारी आ गई। तो जज ने जब उसका मृत्युदंड के लिए उसका रिकमेंड करने लगे, तो जज ने सोचा कि शायद उससे कहीं भूल ना हो जाए, बार बार कहता है, मुझे जरा सुनो इसकी क्या बात है। तो उसने सुनने के बजाय उसने क्या किया, एक नाटक रचते हैं, अभी आज भी नाटक रचते हैं, सच्चाई का पता लगाने के लिए। तो नाटक रचने के दौरान पाया गया कि एक्चुअली ये तो नहीं किया इसलिए मर्डर, तो ये वो हाथ जज खड़ा हो गया। जज उसने कहा मुझसे गलती होगी, आजीवन कारावास दे दिया, और सजूर किया। पता है चौकीदार ने क्या कहा, तब तक उसकी एहसास हो गया कि कारावास में एकांतवास में रहा, पता चल गया था इस बात का, ये उससे पूछ गई। उसने कहा सर आप माफ़ी मत मांगिए, जो सज़ा मुझे मिला वो ठीक मिला। उसने सो कैसे कहा, जब मैं जवान था, जवानी में मैंने किसी बच्चों के साजिश में हाथ साथ, और मैं उस वक्त किसी भी तरीके से बाकी के साथी लोग पकड़े गए थे, मैं किसी भी तरीके से मैं भाग गया। आज क्योंकि मैंने मृत्यु नहीं की थी, इसलिए मुझे मृत्यु दंड से मुझे मुक्ति मिली, लेकिन मैंने साजिश किया। आज तो हम इस बात को मान लीजिए, और ये सही है, 100% सही है कि एक ही माँ के जन्म से बच्चा निकला हुआ वो अमेरिका चला जाता है या मंत्री बन जाता है, तो जाकर छुट्टी आ जाती है। हाँ, रोड में चल रहा है और टक्कर मार के चला गया, मेरी गलती नहीं थी, कोई किसी और की गलती के कारण जरूर। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको इसे कहना चाह रही हूँ। जय हिंद।
नन्ही चिड़ैया से एक उन्मुक्त उड़ान भरने वाली चिड़िया बन जाओगे। और इसी पर मैं एक छोटी सी कविता मैंने कल ही लिखी है, आप कैसे गिद्धों और बाजों से अपने आप को बचाओगे। आपने द्रौपदी का किस्सा सुना था, सुना है? रेज योर हैंड्स। द्रौपदी का किस तरीके से चीर हरण हुआ था। आज ये कविता द्रौपदी को ही संबोधित करते हुए मेरी आपके सामने प्रस्तुत है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी द्रौपदी के अंदर। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर संभालो। जाल बिछाए बैठे शकुनी, जगह जगह आपके लिए जाल है। जाल बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। अगला बंद है इसी गीत का। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं, स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे। स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आए। अगला इसका बंद है। कल तक केवल अंधा राजा। देखिए ये न्याय, हमारी न्यायपालिका और पुलिस सब पूरे प्रशासन पर एक प्रश्न है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, कोई नहीं सुनता। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। वोट सिल दिए हैं जनता के और कानों पर पहरा भी है, कानों पर पहरा भी है। कहो तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम्हारे आंसू, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। आंसुओं की कीमत कई जगह हम कहते हैं ना, बार बार टसुए बहा दिए। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आए। अगला आप सबके लिए, गिद्ध और बाजों के डर से, गिद्ध और बाजों के डर से सहमी सहमी रहती हो। गिद्ध और बाजों के डर से सहमी सहमी रहती हो। ताने छेड़छाड़ दुष्कर्मों को चुप चुप क्यों सहती हो। ताने छेड़छाड़ दुष्कर्मों को चुप चुप क्यों सहती हो। हिम्मत को हथियार बना, बस एक ही चीज, हिम्मत को हथियार बना लो, सब बिल में छुप जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी। इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आज से शुरुआत है और इसके बाद आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में इतने सबल हो जाएंगे कि अपनी डिफेंस आप खुद कर पाएंगे। 15 दिन के इस डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस की पूरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टीम आपके साथ रहेगी और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपके सामने श्रीमती संतोष यादव जी एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर आई और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए और आप आज भी एवरेस्ट फाउंडेशन के ज़रिए मनाली में माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देती हैं और इतने व्यस्त समय में से संतोष जी ने हम लोगों के लिए समय निकाला, आप सब लोगों के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की दिल्ली पुलिस की इंचार्ज श्रीमती
अनुराधा जी, आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। श्रीमती अनुराधा जी, आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय की भी बहुत सारी गर्ल्स को इस तरह की ट्रेनिंग देकर सबल बनाया है और यहाँ पर इसके आयोजन के लिए हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर विजय पांडे और नीना पांडे जी, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन पर इस समय लेक्चर मिनी ऑडिटोरियम में चल रहा है बॉयज़ के लिए, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इंस्पेक्टर शिवानी और उनकी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टीम का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को हम लोगों को यहाँ पर गाइड करने के लिए मेंस के डायरेक्टर डॉक्टर CS शर्मा जी का विशेष आभार और आभार मिसेस संगीता रावल जी का, जो आप सबके साथ मिलकर हम सब लोग सबल बनेंगे, कायल बनेंगे, काबिल बनेंगे। और सबसे ज़्यादा आभार हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स का, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हेयर। एंड उससे भी ज़्यादा बनता है किसका? आप सबका। फॉर यू गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप लोगों के लिए छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशंस हैं। आप लोगों का आज अभी छोटा सा सेशन होगा, दोनों कांस्टेबल मैडम आप लोगों को 10 मिनट के लिए कुछ चीज़ें बताएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और कल से आपका ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम मिनी ऑडिटोरियम में शुरू होगा। और अब मैं अनुरोध करूंगी अपने डायरेक्टर सर से कि वो मुख्य अतिथि को एक संतोष जी मना कर रहे हैं, लेकिन आप सबका प्रेम लिए बिना वो यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो ये प्रेम, ये मेमेंटो एक छोटा सा प्रतीक है आप हमारी इतनी सारी गर्ल्स का प्रेम का। आपको पता है, मैं कुछ समय पहले ये बात बता रही थी, आप लोग को जो प्यार है वो सदैव मेरे पास रहेगा। और मैं मेटेरियलिस्टिक में थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ये बात बता रही थी कि हम जब फ्लावर का गुलदस्ता देते हैं तो एक पर्यावरण को फिर हमारा धक्का लगता है इनफैक्ट, क्योंकि उसके साथ में प्लास्टिक होते हैं। और मैं क्षमा चाहूँगी, मुझसे भी कोई गलती होती है, मैं सुधार करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो मैंने कहा था कि अगर हमारे देश की, विश्व की इकॉनमी अच्छी करनी है तो अनावश्यक चीज़ों को दूर करना है। तो ये फ्लावर का गुलदस्ता देना भी जो है और मोमेंटोज भी हैं। धन्यवाद, आपको प्यार बहुत है मेरे लिए, हैं। धन्यवाद। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज संतोष यादव जी हमारे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आई हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा महसूस होता है कि आपने अपने जीवन में 2 बार कंटिन्यूसली 2 बार आपने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया और पद्मश्री भी जीता, तो कैसा महसूस होता है? देखिए, एक वैसे तो मैं बहुत नॉर्मल, मुझे लगता है कि कभी ये सब ईश्वर की कृपा है। और मैं समझती हूँ कि हमने जो कार्य किया है उसका मैं परिणाम की कभी आशा नहीं करती। और यदि वह मिल जाता है तो नेचुरली उत्साहित तो महसूस करते हैं। एंड स्पेशली तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे बैकग्राउंड से निकले जहाँ पे बहुत छोटा सा गांव हो और कभी कामना भी नहीं की हो उस लेवल पे जाने की, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। मैम, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? क्योंकि वहाँ पर होता है यूजुअली कि लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता इन सब कामों के लिए। मैं भाग्यशाली हूँ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तो मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रही थी। तो उसी वक्त एक भिक्षु भिक्षा मांगने आए, तो मेरी माँ जब भिक्षा देने लगी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दूधो नहाओ पूतो फलो। पास ही में मेरी दादी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि भाया मैंने छोरो ना चाहिए, छोरी चाहिए। आप सोच सकते हो कि इतने वर्ष मतलब मेरी दादी ने मुझे मांग के लिया, तो मैं भाग्यशाली हूँ। और वही प्यार जो मुझे मिलने लगा था घर में, तो तभी उसके बाद मैं पैदा होने के बाद मेरी पिताजी का गले का हार कहा जाती थी। माँ पिताजी इतना मुझे प्यार करते थे
तो उसने मुझे आत्मबल और आत्मविश्वास का धनी बनाया। ज़रूर जब मैं बड़ी हुई 14 वर्ष की तो मेरी शादी की बात चर्चा चलने लगी, 16 वर्ष की हुई तो दबाव काफ़ी बढ़ने लगा, और माँ बाप से ज़्यादा एक्चुअली क्या है, रिश्तेदार आपके बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और वो ऑफ़र लाएंगे। तो ये सब चीज़ों के बावजूद बिल्कुल उन्होंने मेरी पढ़ाई, वो लोग चाहते थे कि पढ़ूं, लेकिन जो समाज का दबाव था उनके ऊपर, तो इसके लिए मुझे रोका आगे के हायर एजुकेशन के लिए भी, और साथ में मुझे माउंटेनियरिंग के लिए तो बिल्कुल रोक दिया था। लेकिन मैं उनके प्रति कभी भी एक ऐसा भाव नहीं रखती कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। मैं ये कहती हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ था उन्होंने निभाया, क्योंकि वो गलत नहीं थे। आज उस वक्त भी ज़माना कभी भी बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए बदलता नहीं है। वह असुरक्षित का महसूस वो करते थे, और सुरक्षा की भावना के दृष्टिकोण से ही वह मेरे लिए ये सब बंदिशें थी। तो इसके लिए मैं उनको कभी भी एक गलत नहीं ठहराती हूँ। मेरा काम था मेरा अपना काम करना, तो उसके लिए मैं ज़रूर मैंने हॉस्टल में रही, और वहाँ रहते हुए मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सारे कार्य किए, और मैं उनको इन्फॉर्म ज़रूर करती थी। और लेकिन उससे एक और बहुत अच्छी सी बात ये आई मेरे अंदर कि मैं हर कदम बहुत संभल के रखती थी, कोई मेरे ऊपर आँच ना आ जाए। तो मैंने अपने आप को एक तरह से समुद्र में फेंक दिया था, जिसको तैरना भी नहीं आता हो। तो मैंने खुद कैसे तैरना सीखा, अपनी भावनात्मकता को कैसे काबू पाना है, कहाँ व्यक्त करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहे मुझे माँ बाप की याद भी आती थी तो मैं किसी के समक्ष रोती नहीं थी, मैं जाके बाथरूम में रो लेती थी, अपना कमरा बंद करके रो लेती थी। लेकिन मुझे उस जिसकी वजह से वो असुरक्षित महसूस करते थे, उस समाज से मैं हमेशा अपने आप को एक भारतीय संस्कृति में रह करके और सौम्यता के साथ में कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, सिचुएशन आई तो भी मैंने अवॉइड करना उस चीज़ को और आगे बढ़ना। तो वो चीज़ जो है हमारी एक, हमको लगता है कि एक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। जब हम किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ज़ाया होती है, ख़राब होती है। बल्कि मैंने अपने भाई को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हुए कभी भी जेलसी और द्वेष नहीं होता था। मैं उनको जब देखती थी जाते हुए तो मुझे रादर एक इंस्पायर होती थी और मुझे अच्छा लगता था। और उस इंस्पिरेशन से क्या है, मैं एक मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, जो कि मैं सफल भी हुई। महारानी कॉलेज हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ कॉलेज है, जयपुर का महारानी कॉलेज। और उसके साथ साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताऊंगी, यदि हम बहुत क्रोध करते हैं या नेगेटिव नकारात्मकता अगर हमारे जहन में आती है तो वो कहीं ना कहीं हमें विकास से रोकती है, क्योंकि ये साइंस है पूरी इसके पीछे। आप देखेंगे जब हम क्रोध आता है तो 48 आवर्स तक हमारी जो ब्रेन में रिएक्शंस होते हैं एड्रेनल, वो जो है वो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि हमने उस 48 आवर्स में फिर से क्रोध कर दिया या फिर से हमारे अंदर एक नकारात्मक फीलिंग आ गई तो वो फर्दर 48 आवर्स और मतलब वो 48 आवर्स के बाद फिर 48 आवर्स, ये नहीं कि जब किया तो वो 48 आवर्स नहीं, मतलब आप सोच सकते कि कितना। तो हमने जो आज भी कहा बच्चियों से कि सौम्यता से आपकी ऑक्सीजन लेवल बहुत बरकरार रहता है। आप जब समता का व्यवहार रखती हैं, एक बिजली के जैसे हमारा शरीर है, यदि हमने अधिक इमीडिएटली रिएक्ट किया तो हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। जैसे बिजली तेज़ आती है, डिम आती है तो फ्यूज़ उड़ जाता है ना, उसी तरीके से हमारा शरीर है। यदि हमने समता का व्यवहार रखा कैसे भी सिचुएशन में तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रखती है और जिसके कारण हमारा बुद्धि सही से काम करती है और साथ में हम डिसीजन ठीक से लेते हैं। वाकई आप जैसी महिलाएं हैं जो हमें आज के टाइम में प्रोत्साहित करती है कि हम और आगे बढ़ें। अब मैम एक बात बताइए, 1992 में आपने पहली बार माउंट एवरेस्ट गई और 1993 में फिर से, तो आपको क्या इंस्पायर किया कि आप दोबारा गई? लोग अपने जीवन में एक बार भी नहीं जा पाते और उनका सपना होता है ये करना। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि कुछ तो प्रारब्ध था। प्रारब्ध का मतलब ये हुआ कि हमारा इस जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म के कर्म हो, तो हमारे जो कर्म थे उसके आधार पर, यानी कि हमारी जो काबिलियत थी, जो हम जैसी हमने परफॉर्म किया वहाँ पर, तो वो परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया माउंटेनिंग के अंदर शुरुआत में गई तो लोगों ने कहा ये पतली दुबली चली जाएगी, ये कहाँ करेगी माउंटेनिंग। लेकिन लोगों ने फिर मुझे मेरी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं माउंटेनियर बनने के लिए भी नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ हिमालय को देखने गई थी।
उसके अलावा जब मैं एवरेस्ट में भी जा रही थी, दोबारा भी जा रही थी, तब मेरे लंग्स छोटे हैं करके निकाल दिया। तो लोग, उस डॉक्टर को ये नहीं पता था मैं ऑलरेडी क्लाइंब कर चुकी हूँ। तो ये एक आपकी योग्यता, आपके कर्म और व्यवहार, ये सारा आपका एक कर्म बन जाता। उसके आधार पर ही मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ। ये वुमेन एक्सपीडिशन जा रहा था और उन्होंने कहा कि मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी एक्चुअली मैंने कहा था एक बार हो गया काफ़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए मदद सिद्ध होगी और लड़कियों का एक्सपीडिशन जा रहा है, कम उम्र की है और बहुत अच्छा से इसने ऑलरेडी परफॉर्म किया है, क्लाइंब किया है, व्यवहार अच्छा है। तो उन्हीं के सबके आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे दोबारा ले जाया गया था। जी जी जी, मैं कोई विश्व रिकॉर्ड बनाने नहीं गई थी और ये बन गया। मैं जब तो एवरेस्ट के टॉप में थी तो मुझे बताया गया कि आपको पता आपका विश्व रिकॉर्ड हुआ है। मैं क्या मुझे पता ही नहीं था। जी जी, आजकल लोग जो है ना एक रिकॉर्ड के लिए क्लाइम करते हैं, या आजकल जो है हम कोई भी वर्क करते हैं रिकॉर्ड के लिए करते हैं। मैं समझती हूँ हम अगर ज्ञान के लिए करेंगे तो हमें हमारी योग्यता का एहसास होगा। यदि हम किसी नाम के लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं हम, अगर वो नाम नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रारब्ध तो बीच में आएगा ना, कर्म तो हमारा बीच में आएगा, तो यदि वो नहीं हो पाता तो क्या होता है, कई बार हमें हताशा हासिल होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है, और जिसका कि समाज के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जी जी, गवर्नमेंट की तरफ से आपके हिसाब से आजकल क्या फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए कि आज का यूथ, स्पेशली गर्ल्स हम जैसी, इंस्पायर हो सके अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं पर कुछ कई फैसिलिटीज़ कहीं लैक करती हैं या कहीं फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता कुछ लोगों को, तो वो नहीं कर पाती। तो क्या ऐसी फैसिलिटीज़? देखिए, मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ से ज़्यादा हर इंसान के अपने जहन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वह दृढ़ तीव्र इच्छा शक्ति में एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने कोई भी सपने को साकार बनाने के लिए। और मेरे सामने ना मेरे पास पैसा था, ना मेरा फैमिली का साथ था, और मैंने, लड़कियां कोल्ड ड्रिंक पीने या बाज़ार में कुछ खाने के लिए जाती थी, मैं नहीं खाती थी। मैं उसी पैसे को बचा कर, कि मैंने बल्कि किताबों का पैसा बचाया, और मैं जाके लाइब्रेरी में लिखती थी, नोट्स बनाती थी और उसी से पढ़ती थी। और मैंने उस किताब के पैसे को 5-5 रुपये, 10-10 रुपये भी जोड़ करके मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया, मेरी हॉबी थी, और मैंने स्केच करना शुरू किया जिसमें कम पैसा खर्च होगा। तो मैंने दूसरी हॉबी को, मैं हिमालय को देखना चाहती थी, उसके लिए मुझे 500 रुपया फ़ीस लगती थी, और 500 रुपया मुझे एक ट्रैवल और चाहिए था। तो सब मिलाकर मुझे 1000 रुपये, मैंने, मुझे पता है 1986 में कितना बड़ा जुगाड़, एक अच्छे परिवार से होते हुए भी मैंने माँ बाप से पैसा नहीं लेना था, तो वो एक कैसे मैंने जोड़ा, एक बात। दूसरी बात है कि आपके अंदर जब बहुत इच्छा शक्ति तीव्र होती है और ईमानदारी होती है उसमें, तो न केवल आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराता बल्कि आपके विवेक को जगाता है। आपके समक्ष बहुत सारी समस्याएं आएंगी, संघर्ष सामने खड़ा होकर दस्तक देगा, तो उसका हमें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष आपका अनुभव बन के आ रहा है। ये मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था इस बात को, तो मैं कभी भी संघर्ष से घबराती नहीं थी, बल्कि मैं उसको ज़्यादा वेलकम करती थी। मैं कहती थी अब मुझे कौन सी जिम्मेवारी के लिए तैयार करने वाले हैं, आप मुझे बता दो, दीजिए इस बात को। तो आई यूज़ टू एक्चुअली इंटरैक्ट इन फैक्ट विद माई सेल्फ, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे समक्ष हुई कि मैं सोचती रहती थी इस चीज़ के बारे में, सोचना शुरू कर देते एवरी डे, सकारात्मक रूप से सोचती थी। तो वह चीज़ें, क्योंकि समय कम है, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें बताती थी कि साइंस की तरीके से मैंने प्रूव किया। और मैं समझती हूँ कि मैं तो कभी किसी से डिमांड करती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा देने की बात सोचती हूँ। तो आज हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे युवा वर्ग, पुरुष, लड़के हों, तो सभी को यदि ये भावना आ जाएगी मन में कि मैं बड़ा हो करके या इसी उम्र में भी मैं किसी को भी अपने लेवल पे मैं क्या दे सकता हूँ, तो उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन आएगी कि वह मिलने लगेगा और वो आगे फर्दर देने लगेगा। ये एक सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं समझती, मैं हर युवाओं से, चाहे वह बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, हमारे सभी से ये अनुरोध करूँगी कि देने की भावना रखें। लेने की भावना से हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमकस की भावना आएगी, यानी कि काम करने की भावना से हम रुकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग शिकायत करने का एक एटीट्यूड को ख़त्म करना होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हुए भी मैंने शिकायत ही नहीं की, मैंने तो उसको सकारात्मक रूप से लिया। जब हम किसी के प्रति शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, विकास रुक जाता है।
आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इतने बच्चों को आपने अपने बारे में बताया, अपने जीवन के बारे में बताया, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची, सब बताया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कियां जब एक टक करके मुझे सुन रही थी, मैं जब शुरुआत में आई और जब मैंने सुना है आज का माहौल के बारे में, तो जो मैं सुनती हूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी और कि ये मुझे सुनेंगी और मैं जिस तरीके की पुरानी बातें और ट्रेडिशनल की और मैथोलॉजी की बातें करूँगी तो वो सुनेंगी। पर मैं देख रही थी, मैं उनकी आंखों में आंखें डाली हुई थी और मुझे पता है, मैं ये बताना चाहूँगी, मेरी जो संस्कृति की ज्योति है जिसको रोज़ाना मैं बुझने नहीं देना चाहती, उसको लोग मिले हैं। और मुझे ये लगता है कि ये अग्रसेन की जो जितनी भी छात्राएं थी, इन्होंने मुझे बहुत बहुत बड़ा सम्मान, ताकत दी है, प्यार दिया है। और मुझे लगता है ये देश ही नहीं, पूरे विश्व को ऐसी बच्चों की ज़रूरत है और वो आगे करेंगी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, उनका कसूर नहीं है और किसी का कसूर नहीं है। उनको तो यदि उस संस्कृति की बात ही किसी ने नहीं की हो, यदि माँ के पास वक्त ही नहीं है उस बात करने के लिए, आज 2 महीने की बच्ची को, 2 दिन की बच्ची को छोड़ के हम नौकरी पे चले जाते हैं, तो वो 9 महीने जो हमारे घर में पल रहा होता बच्चा, जो हमारी सांस को पहचानता है, जो हमारे आहट को पहचानता है, जो हमारे ममता को पहचानता है, यदि वो ममता ही दूर चली गई है तो वो ममता कैसे उसके पास रहेगी? तो यही बात है कि अगर किसी के पास में भी इस बात का ज्ञान नहीं है और वो सुनना चाहती थी, उनको समझ में आ रहा था, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।